Yes, my dear friends. So now approximately 3 months are left for RBI Grade D Phase 1 examination. The notification is expected anywhere in the month of June and the examination is expected in the month of July. And these are just the expectations. These are just the speculations. Nobody knows the notification exactly कब आएगा, but yes, there are high chances that the notification will hit in the month of June. Now, as I made a timetable in the month of January, a 6 months timetable, राइट जब मैंने जनवरी में भी आपको बताया था दैट द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून सो आई एम creating and providing you guys a 6 months timetable. So now when around 3 months are left, a lot of people were asking for a 3 months detailed strategy with the using which you guys can crack this examination. Alright, तो चलिए start करते हैं. First I will tell you the broad timetable and also after that I will be giving you the detailed timetable जिसमें हर एक टॉपिक जो भी आपको कवर करना है वो मेंशन होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉड टाइम टेबल. सो लेट्स से you have started the preparation from 20th of April. It's 22nd today, but ठीक है 20th April कर लेते हैं. एक दो दिन आप एक्स्ट्रा लगा लेना. 20th April से 15th May तक आपको करना है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिवाइड योर डे इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट. राइट, इन द मॉर्निंग from 20th April to 15th May you'll have to cover finance, and in the evening you will have to devote the time to phase 1 plus current affairs. Right, phase 1 plus current affairs. और आप ये उल्टा भी कर सकते हैं. Right, if you are more comfortable in studying current affairs in the morning, what you can do, you can cover current affairs and current affairs in phase 1 in the morning and phase 2 in the evening, whatever suits you. This timetable, ये जो है एक जनरल टाइम टेबल है. ठीक है, इसमें आप इम्प्रोवाइजेशन करके आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से. राइट, 16th May to 31st May, in the next 15 days you are going to cover management, and in the evening you are going to cover current affairs and reasoning. From 1st June to 15th June you will be doing the important chapters of ESI, because as you know, as per the trends of the examination, they generally do not ask static question from ESI, but we can't ignore it because nobody knows 2025 में वो पूछ ले. Right, and in the evening current affairs plus schemes. In the period of 16th June to 14th of July you will have to focus entirely on the phase 1 quant and reasoning revision plus mock test, और उसके बाद इवनिंग में भी आपको करंट अफेयर्स, एनुअल सर्वेज और रिवीजन, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है. ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड टाइम टेबल. अब सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो. अगर आप मैनेजमेंट पहले पढ़ना चाहते हो तो यू कैन पुट मैनेजमेंट फर्स्ट. ESI पहले पढ़ना चाहते हो तो यू कैन पुट ESI फर्स्ट, दैट्स अप टू यू. राइट, अब चलते हैं डिटेल टाइम टेबल की तरफ. राइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 20th April, very first day you will have to cover the functions of RBI in the morning, in the evening current affairs plus number system. And if you are well versed with quants, let me tell you one thing here. If you are well versed with quants, अगर आपको quant और reasoning आता है, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे कम टाइम लगा के जो यहाँ का बचा हुआ टाइम है वो आप फेज 2 में लगा सकते हो. ठीक है, और दूसरा ले लो, अगर आपको फेज 2 बहुत अच्छे से आता है, ऑलरेडी यू आर लेट्स से फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आपको फाइनेंस आता है, आपने MBA फाइनेंस किया हुआ है, यू नो द फाइनेंस, then you can devote more time to quants and reasoning. So that depends on your background, your potential, your time availability. इसलिए मैं कहता हूं that you need to prepare yourself a timetable. ये मैंने दे दिया है. ठीक है, ये मैंने दे दिया है. इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. राइट, ठीक है. 21st April बैंकिंग सिस्टम को 2 दिन दिए. जो चैप्टर्स थोड़े से लेंथी है उनमें 2 दिन भी दिए, कुछ में 3 दिन भी दिए हैं. And most of the chapters you have to cover in 1 day. And yes, अब आप ये नहीं कह सकते कि इतने दिन में कैसे करेंगे. भाई करना पड़ेगा. अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो. नहीं, if you can't do it then leave it. ठीक है, don't फिर उसके बाद जो है सपने मत देखो आर्मी ऑफिसर बनने के. If you can't do it. ठीक है. 23rd April फाइनेंशियल मार्केट. 24th जैसे you can see फाइनेंशियल मार्केट को I have given 3 days because it's a lengthy chapter. A lot of concepts, a lot of theories are there. ठीक है. पॉइंट प्लस करंट अफेयर्स चलता रहेगा चैप्टर वाइज, यहाँ पे मैंने लिख दिया है. इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे. 26th April फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, 2 days फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, देन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स. 28th April, फिर ऐसे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे. सिमिलरली इन द इवनिंग वी विल बी डूइंग द सेम. ठीक है, 2nd May को कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, एंड 3rd May को भी सेम. 4th and 5th में इन्फ्लेशन. 6th May को रोल ऑफ IT इन बैंकिंग सेक्टर.
और इवनिंग में आपके करंट अफेयर्स और क्वांट प्लस क्वांट के चैप्टर्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। 7th 8th को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे मैंने 2 दिन इसलिए दिए बिकॉज द पीपल हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड उनको टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 3 दिन दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद रेशियो एनालिसिस को 2 दिन। इस तरीके से 13 मई तक जब हम आएंगे तो आपका फाइनेंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 2 दिन है 14th और 15th में, उसमें आपको उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है जिसमें आपको लगता है दैट यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट, राइट। You have to revise those chapters on 14th and 15th May in which you feel that you are not very confident. ठीक है. Similarly, your quant will be finished by 15th of May, and you can see I have given 4 days to DI because DI तो आना ही आना है, and you know they ask very difficult question from DI, so इसलिए DI को बहुत अच्छे से करके जाए, ठीक है. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 16th of May को. 16th of May से आपको मैनेजमेंट स्टार्ट करना है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैनेजमेंट फंक्शन एंड मैनेजरियल रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू ओबी पर्सनालिटी, और शाम को यू हैव टू स्टार्ट रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स इज द कांस्टेंट थिंग, वो तो चलता ही रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते. एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट इन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये सब आपको कंटिन्यू रखना है. ये आपका मैनेजमेंट और रीजनिंग चलता रहेगा कब तक? 31st May तक, ठीक है. As per my timetable, your management will be finished by 30th May, right? And you can take a chill pill or you can revise whatever you want on 31st of May, right? अब जब हम 31st May पे आएंगे तो नोटिफिकेशन का हंगामा और ज्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है. तो अब आपके अंदर की जो एंग्जियसनेस है वो और ज्यादा बढ़ चुकी होगी. तो इसलिए यहां तक में हमने ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया, फाइनेंस कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया. अब हम हल्की हल्की चीजें करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपका एंग्जियसनेस का लेवल बढ़ेगा थोड़े दिन के लिए, ठीक है. सो फर्स्ट फ्रॉम 1st June वी विल बी स्टार्टिंग ईएसआई इन द मॉर्निंग, एंड शाम को हम रखेंगे करंट अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट स्कीम्स यू नो आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. यू कांट इग्नोर गवर्नमेंट स्कीम्स, सो यू हैव टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स इन डिटेल, राइट. अब जो अभी मैं सेशंस ले रहा हूं, द सेशंस व्हिच आई एम टेकिंग दीस डेज, यू हैव टू वॉच दीस सेशंस, ठीक है. उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा सो यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल, ठीक है. And PDFs are also being provided, so you can keep those PDFs with yourself and you can revise through the PDFs later on. इसी तरीके से we will be moving ahead from 1st to 10th June तक हमारा ESI और गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स चलता रहेगा. इनफैक्ट 15th June तक, 1st June से 15 June तक 15 दिन हम देंगे ESI गवर्नमेंट स्कीम्स को, और साथ में करंट अफेयर्स इज द कांस्टेंट थिंग, वो तो चलता ही रहेगा, राइट. और चैप्टर वाइज लिख दिया मैंने, इसी चैप्टर वाइज करते रहे. उसके बाद अब देखो 15th June तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने स्कीम्स कर लिया, आपने क्वांट कर लिया, या आपका वर्ड क्वांट, रीजनिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज एनुअल सर्वेज, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, व्हिच यू मस्ट ऑलरेडी बी कवरिंग थ्रू द करंट अफेयर्स. बट ठीक है, देयर आर सर्टेन एनुअल सर्वेज जैसे बजट सर्वे, एनएफएचएस 5, पीएलएफएस, इनको आपको सेपरेटली टाइम देना है, राइट. So from 16th of June, on 16th of June you will be attending the very first mock test for phase 1, और शाम को you will be covering the current affairs plus annual surveys, right. उसके बाद you will be just revising quant and reasoning, alternate days पे आपका quant और reasoning चलता रहेगा. और mock test की मैंने डेट्स आपको दे दी है. पहले शुरुआत करेंगे हर 3 दिन में, हर 3 दिन के बाद एक mock test, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा उसको 2 दिन कर देंगे. mock test is the most important thing. If you are planning to go to write this examination without the mock test, you are planning to just get failed in the examination, my dear friends, very honestly, ठीक है. उसके बाद आगे चलो 24 जून को एक और मॉक टेस्ट, क्वांट रीजनिंग का ऑल्टरनेटिवली रिवीजन आप करते रहेंगे. करंट अफेयर्स और स्कीम्स, फिर से आपको स्कीम्स रिवाइज करना है. करंट, फिर उसके बाद इसी तरीके से मॉक टेस्ट ये चलता रहेगा, राइट. मॉक टेस्ट, क्वांट रीजनिंग, सीएफएस, स्कीम्स. फिर जब हम 1 जुलाई पे आएंगे, अब आपको स्कीम्स भी आपने रिवाइज कर लिया, तो शाम का समय आपको पूरा का पूरा किसको देना है? जो नया करंट अफेयर्स है वो, प्लस जो पुराना आपने पढ़ा है जो भी, उसकी रिवीजन करनी है. ये जो रिवीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किसी भी चीज की रिवीजन हो सकती है जिसमें आप अभी लैग कर रहे हैं. क्वांट रीजनिंग की आपकी रिवीजन तो सुबह सुबह चली रही है, और जैसे ही आपका एग्जाम पास आएगा तो आपको मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के अंदर अटेम्प्ट करना है. इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, और मान के चलते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 15 जुलाई होगा. एज पर दिस टाइम टेबल आई एम अज्यूमिंग दैट योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 15th of July.
इस तरीके से लास्ट मॉक टेस्ट आपको 13 जुलाई को देना है और एग्जाम से एक दिन पहले यू जस्ट हैव टू टेक अ चिल पिल, पढ़ना नहीं है। अब अगर एक साल में नहीं पढ़ा तो एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए 14 तारीख को बस चिल करना है, अच्छे से नींद पूरी करनी है और अगले दिन जाके बढ़िया से एग्जाम देना, ठीक है। और इस दिन भी बस ये लास्ट होगा रिवीजन, इसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। So my dear friends, this was the detailed timetable. I hope this timetable is clear. If you want to have this timetable, please go and check the description of this particular video. वहां पे आपको ये PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद you guys can make changes yourself, right? And yeah, booster batch is already going on, right? Or if you want to get enrolled, you can use coupon code Manish for the extra discounts. ये जितना भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, everything is going to be covered in the next 90 days through the booster batch. Thank you very much. I'll see you in some of the other videos. Goodbye, take care, and God bless.